اسی طرح سرکار سید عبدالسلیم گنگیری نے اپنے نام پر پردہ ڈال کر تیرے علی کے نام کو تیرے علی کے نام نام ہوا ہے اور سب سے زیادہ جس کی سلسلہ جو مقبول ہوا ہے وہ خواجہ غریب نواز سے اور سب سے زیادہ آمدنی سلسلہ جو آمدنی سلسلہ جو مقبول ہوا ہے وہ سرکار تیرے علی سے رشتہ بڑا سچا ہے، بڑا پکا ہے اور رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ بہت ساری کرامتیں میں آپ کو ایک بات سناؤں، ایک بار محبت سے اور بولے سبحان اللہ۔ جو کئی وقت میں مزاج بنا ہوا جو ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، سب فرسٹ ہو جاتا ہے، فرسٹ ہو جاتا ہے۔ کچھ باتیں یاد رہتی ہیں، نہ سننے والے ہوتے ہیں نہ سنانے کا مزاج رہتا ہے، مگر یہ سرکار سلطانی کا فیضان ہے اور پورے ہندوستان میں انہی کے فیضان سے بولتا بھی ہے، سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے کئی نقبہ سے سنا اور نقیب اعظم حضرت ہلچل شیوانی اور نقیب اہل سنت حضرت بھلو واقعی سے سنا، کئی کتابوں کے مصنف کے حوالے سے۔ میرا کچھ اپنا کمال ہے، میں نے کئی شعر میں کہا ہے، کئی کتابوں میں لکھا ہے، اپنا کمال کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ سرکار سلطانی کا کرم ہے۔ ایک دو نہیں، فہرست کو دیکھا جائے تو تقریباً 25 کتابیں ہماری ہیں۔ کتنی ہیں؟ 25 کتابیں ہیں، جس میں ایک کتاب کا نام جو ابھی زیر تصنیف ہے، مکمل نہیں ہوئی ہے، اس کا نام ہے حیات سرکار سلطانی۔ میں وہ بھی کام کرنا ہوں الحمدللہ۔ تو یہ اپنا مال نہیں ہے، یہ مال کس کا ہے؟ یہ سرکار سلطانی کا مال ہے، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی عنایت ہے۔ رنگ کے حوالے سے ایک بات یاد آئی تھی، اس ذہن سے نکل گئی، پھر یاد آ گئی۔ رنگ چڑھایا سرکار سلطانی نے، مجھے یاد آیا ایک بابا تھے جو رنگ چڑھانے کا کام کرتے تھے۔ دن میں کپڑے پر رنگ چڑھاتے اور رات کو مصلی بچھا کر دل پر رنگ چڑھاتے تھے۔ کام تھا ان کا کپڑے پر رنگ چڑھانا، کام تھا۔ ایک روز ایک ہندو عورت آ گئی، اس کے گھر میں بیٹے کی شادی تھی، بہت سارا کپڑا لے کر گٹھڑی موٹڑی لے کر سرکار کی بارگاہ میں آئی، بابا ذرا میرے کپڑوں پر بھی رنگ چڑھانا ہے۔ حضرت نے فرمایا رکھ دے، اسے کب دینا ہے؟ بتانے کہنے لگی فلاں تاریخ کو دینا ہے، اس سے ایک روز پہلے آپ دے دیں گے، دوسرے روز بیٹے کی شادی ہے۔ حضرت نے فرمایا جا اس تاریخ پر آنا اور لے جانا۔ وہ چلی گئی، حضرت کے ذہن سے بات نکل گئی، اب وہ تاریخ آ گئی، رات کو بارش ہوئی، حضرت جھوپڑی میں رہتے تھے، اللہ والے کو تو جھوپڑی بڑا پسند رہتا ہے، جھوپڑی میں رہتے تھے، بارش میں ہوئی، پانی اندر آ گیا، کیچڑ ہو گیا، حضرت کھڑے ہو کر کیچڑ سمیٹ رہے تھے، اسے ہٹا رہے تھے، اتنے میں وہ ضعیفہ آ گئی، وہ عورت آ گئی جس نے کپڑا دے رکھی تھی، کہنے لگی سرکار کیا آپ نے میرے کپڑوں پر رنگ چڑھا دیا ہے؟ کیا آپ نے میرے کپڑوں پر رنگ چڑھا دیا؟ حضرت نے فرمایا اوہ بیٹی وہ تو میرے ذہن سے ہی بات نکل گئی، وہ تو ذہن سے ہی بات نکل گئی۔ اب لگی رونے، کہا حضرت اب کیا ہوگا؟ میری تو عزت ہی چلی جائے گی، بچے گی نہیں، کل بیٹے کی شادی ہے، کسی کپڑے پر رنگ چڑھانے کیا پہنوں گی، کیا پہناؤں گے؟ حضرت میری عزت چلی جائے گی۔ جیسے ہی اس نے کہا حضرت میری عزت چلی جائے گی، حضرت نے فرمایا بیٹی خاموش خاموش چپ ہو جا، اللہ والے عزت جانے نہیں دیتے، عزت بچا لیا کرتے ہیں۔ اے بیٹی کیا کونے میں تیری گٹھڑی رکھی ہے، موٹڑی رکھی ہے، جا اٹھا کے لے آ۔ وہ گئی اور کپڑے کی موٹڑی لے آئی۔ حضرت کہاں کھڑے ہیں؟ کیچڑ میں۔ کہاں کھڑے ہیں وہ لوگ؟ کیچڑ میں۔ حضرت نے کہا بیٹی ایک کپڑا نکال، اس میں سے نکالی۔ حضرت نے پوچھا اس پر کون سا رنگ چڑھانا ہے؟ اس نے کہا لال رنگ چڑھانا ہے۔ حضرت نے بسم اللہ پڑھی اور کیچڑ میں کپڑے کو ڈالا، نبی پر درود پڑھا اور کیچڑ سے کپڑے کو نکال کر کہا بیٹی یہ اس پر لال رنگ چڑھ گیا ہے، دوسرا کپڑا لا، دوسرا دیا اس نے، کون سا رنگ چڑھانا ہے؟ کہا
कहा पीला चढ़ाना है, कपड़े को कीचड़ में डाला, एक पांव से अंदर किया, दूसरे हाथ से पकड़ के दरूद पढ़ता हुआ निकाला। हजरत ने कहा बेटी इस पर पीला रंग चढ़ गया, तीसरा कपड़ा दे दे। फिर दिया उसने, कौन सा रंग चढ़ाना है? हरा रंग चढ़ाना है। हजरत ने फिर कीचड़ में डाला, नबी पर दरूद पढ़ा और निकाल के कहा बेटी ले इस पर हरा रंग चढ़ गया। अब वो ज़ईफा कहने लगी बाबा आप कपड़ा पर रंग चढ़ा रहे हो या मेरे दिल पर रंग चढ़ा रहे हो? ए बाबा अब कपड़ा छोड़ दो, कपड़े पर रंग नहीं चढ़ाना है, बाद में चढ़ा देना, पहले वो रंग मुझ पर चढ़ा दे जो रंग तेरे ऊपर नजर आ रहा है। मुझे भी कलमा पढ़ा, अपने महबूब का गुलाम बना। हज़रत ने फरमाया बेटी तो पढ़ ले। पढ़ी उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुसलमान हो गई। हजरत ने सारा कपड़ा कीचड़ में ही रंग के दे दिया। जरा मोहब्बत से बोले, जरा जोर से बोलो सुनिए। कई घर गई, फौरन पलट के आ गई। तो हजरत ने पूछा बेटी अब क्या है, अब क्या है? तो कहने लगी हुजूर वो जो रंग मुझ पर आपने चढ़ा दिया है ये सिर्फ मेरे लिए ही था या मेरे बेटे के लिए भी है? जोर से बोलना सुनिए, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। अरे मोहम्मद अली फैजी साहब नहीं है तो क्या हुआ, नबी का गुलाम तो बोल रहा है। जरा बोलो सुनिए, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है मैं भी नात पढ़ लेता हूँ, मेरी भी आवाज़ अच्छी है। अगर मैं भी यूपी एमपी से चलता और शायर के सब में रहता तो 40,000 नजराने मेरे भी होता। कमज़ोर आवाज़ मेरी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और नात की 7-8 किताबें हैं। तो ज़रा मोहब्बत से इस हवाले से बोलो कि तेरे महबूब का जिक्र हो रहा है। ज़रा सुनिए, बोलो सुभान अल्लाह, ज़रा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत ने फरमाया बेटी अब क्या? कहने लगी सिर्फ मेरे हिस्से का था या बेटे का भी मिल जाएगा? हज़रत ने फरमाया शादी कब है तेरे बेटे की? कहा कल परसों। जो तारीख थी कहा ऐसा करना बेटी बारात जो जाएगी ना तो मेरी गली से ही ले जाना। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कहा बारात जो जाएगी मेरी गली से ले जाना। चलिए बारात सजी, किसी ने कहा इधर से चलें, किसी ने कहा ये रास्ता ठीक है, किसी ने कहा अभी अभी ये सड़क बनी है। ज़ईफा बाहर निकली, बोली बेटा मेरा है, मैं जिधर से कहूँगी उधर से बारात जाएगी। कहा किधर से? तो वही गली बताई जो अल्लाह वाले की थी, जिधर कुटिया हजरत की थी। लोग कहने लगे उधर से तो कभी किसी की बारात न गई। कहा किसी की गई या न गई, मेरे बेटे की बारात उधर ही से जाएगी। अच्छा चलिए बारात चली है। हम लोगों का हाल क्या है, सिर्फ बारात चलती है, सारी अच्छी अच्छी गाड़ी जितनी होती है तमाम अच्छी गाड़ियों में हमारे नौजवान बैठ जाते हैं। और जो सबसे सड़ा हुआ बोलोरो है इमाम साहब जाइए ना बैठने जगह, इमाम साहब बैठ जाइए उसमें जगह खाली है। उन लोगों का क्या मामूल था, वो अपने पेशवा को आगे रखा, अपने रहबर को आगे किया, सारे लोग पीछे हैं और नारा लगाते हैं जय गुरु जय गुरु जय गुरु। और बारात जा रही है। जब हजरत के कुटिया के करीब पहुंची बारात, हजरत के कान में आवाज गई। हजरत निकल के बाहर आए, इंतजार में खड़े हैं, बारात करीब आ रही है, करीब आ रही है। जो ही करीब आई खानकाह से और कहा जय गुरु, तो हजरत ने फरमाया बेटा तुम लोग भूल गए, अरे जय गुरु नहीं है अल्लाहू है, अल्लाहू है, अल्लाहू है। जैसे ही हजरत ने कहा अल्लाहू है, नौशादी बोला अल्लाहू है, सारे बराती भी बोले अल्लाहू है। हजरत ने फरमाया ज़ईफा साथ साथी कहा बेटी इधर आ, तूने बेटे के लिए कहा था, मैंने सब पर एक ही रंग चढ़ा दिया है, सब पर एक ही रंग चढ़ा दिया। तो अल्लाह वाले इस तरह रंग चढ़ाते हैं। अब सुनो सरकार सुल्तानी को, अब अबकरपुर की सरजमीन है, कासिम साहब का मकान है, अब मिलाद शरीफ की महफिल है, चंद खुलफा साथ में है और सरकार चांदपुर फतेह यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह भी साथ में है। अब मगरिब के बाद इमाम साहब को तलाशा जा रहा है, क्यों मिलाद शुरू किया जाए, नात पढ़ी जाए, तकरीर की जाए। इमाम साहब गायब है, चूंकि अब अबकरपुर है ना, इमाम साहब गायब है। आप समझ रहे हैं ना कि शतीजे के लोग हैं, कैसे लोग हैं, इमाम साहब गायब है। तलाशे होशियार के बाद भी ना मिल सके इमाम साहब। हजरत ने एक बच्चे से कहा तिलावत करो, अब मुस्कुरा के कहा हजरत यूसुफ शाह के तरफ कि आज हमारा यूसुफ ही तकरीर करेगा, आज यूसुफ तकरीर करेगा। हजरत यूसुफ साहब ने सूफी साहब से मशहूर थे। अब पीर कामिल की आवाज बुलंद हुई है, पीर कामिल की जुबान विलायत से निकला है। तो आप क्या बोलते, कुछ नहीं, बस अदब से इतना पूछा हे मेरे सरकार हम तकरीर कर लेंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। हजरत ने मुस्कुरा के कहा सूफी साहब
आज आप एक नात भी पढ़िएगा और तकरीर भी कीजिएगा। सुभान अल्लाह। कहिए में छड़ी ले जाइए, ये आशा ले जाइए, स्टेज पर जाइए, पीर का आशा लिया, सरकार सुल्तानी का आशा पकड़ा, सरकार चाँदपुर फतेह ने और स्टेज पर गए और एक नात पढ़ा। कौन सी नात पढ़ी आपको मालूम है? कौन सी नात पढ़ी? वही अल्लामा अरशद कादरी की लिखी हुई वो नात पढ़ी कि जिससे तुम रूठो वो बरकस्ते दुनिया हो जाए और तुम जिसे चाहो वो कतरा हो तो दरिया। नात पढ़ी और फिर तकरीर शुरू किया। 1.5 घंटे तकरीर की सरकार चाँदपुर फतेह ने। कहीं पर अरबी भी बोल रहे हैं, कहीं इंग्लिश बोल रहे हैं, कहीं हिंदी बोल रहे हैं, कहीं संस्कृत बोल रहे हैं, कहीं फारसी बोल रहे हैं, कहीं मादरी बोल रहे हैं। अब जितने मुखालिफ किस्म के लोग बैठे थे, अब पढ़े लिखे लोग बैठे थे, उसने कहा जल्दी करो, चलो यहाँ से। अरे जब हजरत के आशा में ये कमाल है, छड़ी में ये कमाल है कि मुरीद को पकड़ा दे तो 1.5 घंटा तकरीर कर दे। जिसकी छड़ी का ये आलम है उसकी जात का, उसकी शख्सियत का आलम। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अब एक वाकया 1 मिनट में मैं अपने घर का सुना के बाद खत्म करता हूँ। एक तारीख सुनिए, एक करामत सुनिए। सरकार सुल्तानी अलैहि रहमतुल्लाह मेरे घर अक्सर जाते थे। मेरी दादी मुहतरमा 120 साल का इंतकाल किया और अभी 20 रोज पहले मेरी माँ का इंतकाल हो गया। दुआ कीजिए अल्लाह ताला सरकार सुल्तानी के सदक़े मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमाए। बड़ा टूटा हुआ हूँ मगर सरकार सुल्तानी ने हौसला बुलंद किया है। ये चंद जुमले बोल रहा हूँ। अक्सर सरकार सुल्तानी का आना होता था। बड़ी तेजी के साथ 1 मिनट में आपको करामत सुना दूँ जो पूरे इलाके में जिंदा करामत बनकर अभी चमक रहे हैं। वो करामत सुनिए। मेरी दादी मोहतरमा 7 बहनें थी। कितनी थी बोलिए? 7 बेटियां। हजरत नूर हसन को सरदार उनको कहा जाता है, सरदार थे, नूर हसन नाम था दादी के अब्बा हुजूर। 7 बेटियां थी और बेटा एक भी नहीं। अच्छा ऐसी करामत गौसे आजम से आपने सुनी है कि नहीं? बोलो सुन रखी है कि नहीं? यही करामत देखिए। 7 बेटियां, बेटा एक भी नहीं। सरकार सुल्तानी की आमद हुई मुकर्री में और हजरत सूफी अब्दुल्ला साहब मुरीद खास थे उनके वहाँ। तो सूफी साहब ने कहा नूर हसन साहब से कि आप दोनों आदमी मुरीद हो जाइए, हजरत आ गए हैं। तो दादी की अम्मी ने कहा कि अगर हजरत एक बेटे की दुआ कर दें तो हम मुरीद हो जाएंगे अगर बेटे की बशारत हो जाए तो हम मुरीद हो जाएंगे। अच्छा उम्र कितनी है? कल मैं आते आते पूछ लिया, हमारे दादा भी हयात से हैं, दादी के भाई। वो हयात से उनसे पूछा मैंने तो बताया कि अब्बू की उम्र अम्मी की उम्र इतनी थी कि उम्मीदें नहीं की जा सकती थी कि अब कोई औलाद होगी। 7 बेटियां हो चुकी थी, 1-2 बच्चे इंतकाल भी कर गए थे। अब वो उम्र नहीं थी कि फिर औलाद की उम्मीद की जाए। मगर सरकार सुल्तानी है। हजरत सूफी अब्दुल्ला गए, पाँव दबा रहे हैं, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है मगर दिल में ख्याल आया, आंखों में आंसू आए, सरदार साहब तो बेटा नहीं है। आंसू टपका तो सरकार तेज़े अली के जिस्म अतहर पर पड़ा। सरकार सुल्तानी ने कहा सूफी साहब क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? हजरत ने फरमाया, सूफी साहब ने फरमाया हजरत वो सरदार साहब है ना, उनके पास 7 बेटियां हैं, बेटा एक भी नहीं है। अगर दुआ कर देते तो बेटा हो जाता। अब वो दोनों मुरीद भी होना चाहते हैं। हजरत ने थोड़ी देर आंख बंद करके और फिर आंख खोल के कहा सूफी साहब जाइए, ज्यादातर नहीं एक ठो होगा सुभान अल्लाह, ज्यादातर नहीं एक होगा। नाम उसका अली मोहम्मद रखिएगा। सुभान अल्लाह का अली मोहम्मद। अच्छा इतना इन दोनों नाम से सरकार को कितनी मोहब्बत है। अब गौर कीजिए, इनके खानदान में अक्सर नाम आपको मिल जाएगा मोहम्मद अली, अली मोहम्मद, अली अहमद, इस तरह नाम मिल जाएंगे। तो सरकार ने फरमाया कि नाम अली मोहम्मद रखिएगा। अच्छा चलिए वक्त आया और अली मोहम्मद साहब आ गए, नाम रखा नूर मोहम्मद, क्योंकि बाप का नाम था नूर हसन। अब बच्चा को सुकून नहीं, चिंकी है, परेशानी है, टेंशन है, बच्चा रो रहा है। सरकार सुल्तानी की आमद हो गई 1.5 साल के बाद। मुकर्री में गया तकरीबन, जैसा कि उन्होंने बयान किया उसको, या 1 साल के बाद गई सरकार सुल्तानी की आमद हुई। तो सूफी अब्दुल्ला साहब गए और सरदार साहब गए नूर हसन साहब का, हुजूर करम है आपका, बेटा तो आपकी दुआ से हो गया मगर वो सही नहीं रहा है, बड़ा बीमार रह रहा है, बड़ा चौंक रहा है, बड़ा रो रहा है। हजरत ने आंख बंद किया, सरकार सुल्तानी ने फरमाया ओ नाम हम बतलियो रहा अली मोहम्मद, तू रख लो नूर मोहम्मद, ठीक कर लो, बच्चा से ठीक हो जाएगा। आज भी 75 साल की उम्र में अली मोहम्मद साहब हयात हैं, जो सरकार सुल्तानी की करामत बनकर पूरे इलाके में चमक रहे हैं।
हे लोगों, बहुत सारी करामतें हमारे गांव हमारे इलाके में सरकार सुरखाही की देखी गई है। आप जिधर जाते, ये मजमा जो मैंने देखा, मैंने सोचा पूछो किसी आलिम दीन से इतनी भीड़ क्यों है, तो फिर दिल ही में ख्याल आया, अरे सुना नहीं तुम, जिधर जाते थे सरकार सुरखाही काफिला हो जाता था, मजमा हो जाता था, सैकड़ों हजारों की भीड़ हो जाती थी। तो ज़ाहिरी हयात में जगह जगह सरकार सुरखाही जाते थे, वहाँ वहाँ मजमा लगता था। आज जब ये पर्दा कर गए हैं तो उन सारे इलाकों का मजमा सिमट के सुरखाही शरीफ में आ गया है। कहा सरकार जहाँ होंगे मेला तो वही लगेगा। तो ये सरकार सुरखाही की शान है, करामत है। तकरीर अगर पहले होती तो मैं अपने लहजे में, अपने अंदाज में और सलीके से, शाइस्तगी से बहुत सारी करामतें और पैगाम सरकार सुरखाही में आपको सुनाता। सरकार सुरखाही का पैगाम क्या है, बयान क्या है, आपका हुक्म क्या है मुरीदों से और इल्म के हवाले से आपकी कितनी मेहनतें हैं। अब मुरीदों के लिए तलकीन और वसीयत और नसीहत क्या है, ये सब मैं आपको बताता, लेकिन वक्त नहीं रहा, हयात बाकी रही, मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह फिर बात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। सरकार सुरखाही के फैज़ान से अल्लाह पाक हम सबको मालामाल करें। अशार और कलाम तो मैंने बहुत लिखे हैं, एक शेर में पढ़ लेता हूँ, फिर मैं जगह लेता हूँ। एक बार ज़रा मोहब्बत